Good morning, Arpita. Good morning, Harit. How are you? Hi. Good, good. How about you? I'm good, thank you. Good. Nice to We, see you. Yeah. yeah, You know, I think the last we met was in Jan, I guess. yes, yes. That was long way. Long back. Correct, correct, correct. Yeah. Uh, I'll just quickly go on a mute. I'll just check with Yes. Arun's availability as well. Yes, yes. Hello, 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 hello. Sujit, can you please be on mute before we start the session? Thank you. All students, please rename yourself. All students, please rename yourself.
Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sorry, I'm a little bit delayed. No problem, sir. I will just get started. Just give me 1 minute. Everyone can see me and hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Okay, thank you. So do you want me to use Hindi and English or more Hindi? Hello. Good morning. Welcome. My name is Arun from Magic Bus. Welcome. Thank you, Arun. Yeah, Ashok. Sir. Ashok. So I know this is your platform to talk to the people. I will not come in my way to take your time. But first of all, I think this is for us once in many years kind of event that a CEO of a very large organization has found time and come to share his experiences with all the youths who are in our program and who want to aspire and they have the same aspirations which you had when you were young. And many of them, though they come from humble families, would strive hard. We hope and pray that they will, climb the ladders of success like you. So wanted just to say we are so grateful that you found time to talk about your experiences. With your permission, we are going to record this and share to a larger audience later on because these are the inspiring speeches, which is more important to us than our own curriculum. So these are few words. So we and our team, So we and our team look forward to interacting with you. Thank you so much. Thank you so much, All Arun. yours. God Arun, bless do you you. mind giving me the access to share a slide? My team will certainly do that. Harit, can you just Sure. do that screen share? Yeah. Bhargavi, could you allow the access? So Ram, may I have your permission to introduce who you are to the team at large in one line and then get you to take over? Yes. Okay, so ladies and gentlemen who are on this call, आप जो अभी call पे हो, आपके तो आप सब थोड़ा सा म्यूट कीजिए आपके फोन्स. या सो ये जो आपने अभी टाइम लिया है सर का जो आप इंस्पायरिंग स्टोरी वो बताएंगे कि वो कहाँ यंग आपके जैसे जब आपके एज थे वो क्या थे, क्या करने की इच्छा थे उनको और अब उन्होंने कैसा ये जो बड़ा पोजीशन उन्होंने अभी अचीव किया है वही बताएंगे कि क्या पोजीशन पे वो है. तो ये जो इंस्पिरेशन है आप उनसे सुनिए बिकॉज उन्होंने भी आपके जैसी लेवल में थे, आपके जैसी उनको तभी उनके आपके जैसे ये थे एस्पिरेशन थे और उन्होंने क्या क्या किया कि अभी एक नए पोजीशन में आके वो उन्होंने अभी सक्सेसफुली एक बड़ा कंपनी को चला रहे. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू जॉइनिंग. राम, ऑल योर्स. थैंक यू. मुझे वो एक्सेस नहीं मिला अभी शेयर करने के लिए. Yeah, I got just it. hold on. Thank you, I got it. Yeah. Can you see my screen? Yes. Okay. We can see that. Okay. So, good morning everyone. सबको मेरा नमस्कार और ये opportunity मुझे देने के लिए Magic Bricks को भी thank you so much. मेरा request है सब अपने अपने lines को mute पे रखो please. Thank you. तो मुझे ये बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आप सबसे बात करने के लिए. मेरा इच्छा था कि मैं सामने से बात करूं बट अभी वो सिचुएशन नहीं है. अभी सबको मालूम है पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का. तो होपफुली एवरीबॉडी सब अपने अपने परिवार के साथ सेफ है. पहले सब सेफ रहो और हेल्दी रहो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो मेरा जो शेयरिंग होगा आज, मैं शायद 30-40 मिनट बात करूंगा. फिर सब क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो मेरे से आप सब लोग. आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी जितना हो सके. मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, मैं चेन्नई से हूँ तो मेरा मातृभाषा तमिल है, पर फिर भी हिंदी सीखा है मैं, तो मैं जितना हो सके हिंदी में ही बात करूंगा. तो कुछ गलतियां किया तो प्लीज मुझे माफ कर देना. थैंक यू. मेरा स्टोरी है जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, फ्रॉम फेलियर टू सीईओ.
ये मेरा टॉपिक था आज आप सबके साथ बात करने का, क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद आपको इंस्पायर कर सकता है। और मेरा जो स्टोरी है वो एकदम आम आदमी का स्टोरी है, और कैसे मैं ये अचीव किया मैं आपको आज शेयर करूंगा। तो मेरा पैदाइश हुआ 1980 में, तो इस साल अगस्त में मेरा 40 इयर्स होगा, 40 साल। और जब मैं मेरा लाइफ शुरू हुआ चेन्नई से, साउथ इंडिया में, एक नॉर्मल सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा लाइफ शुरू हुआ। मेरा एक बहन है जो मेरे से बड़ी है 2 साल। और हम एक्चुअली जब अभी भी मुझे याद है जब मैं 5वीं में पढ़ रहा था, तब हम एक्चुअली एक सिंगल रूम के घर पे रहते थे और बाथरूम और टॉयलेट सब शेयर करना पड़ता था बाकी लोगों के साथ। ऐसे एक फैमिली में ही मेरा जन्म हुआ। पर पापा मम्मी बहुत हार्ड वर्क करके मुझे अच्छे से स्कूल में भेजे, स्कूल पढ़ाई करने के लिए। तो जब मैं स्कूल में था तो मुझे गाने का बहुत शौक था, तो मैं सिंगर का ट्रेनिंग लिया, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक का। तो जब सब लोग पढ़ रहे थे बिजी टाइम पे, तो मैं गाना गा रहा था कॉम्पिटिशन्स में जाके मेरे स्कूल के लिए। और जब 10वीं खत्म किया तो एवरेज स्टूडेंट था स्कूल में, 70% 75% मार्क्स ले रहा था। पर मुझे गाने का शौक था तो गाना गा रहा था बहुत, और पढ़ाई और नॉर्मल हो रहा था, एवरेज परफॉर्मेंस था। जब मैं फिर 11th स्टैंडर्ड में मैंने साइंस ग्रुप लिया, वो मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि मुझे साइंस नहीं आ रहा था। वो मुझे पहले ही पता था, पर फिर भी सभी मेरे दोस्त सब साइंस में जा रहे थे तो मैंने भी वही किया। तो 11th स्टैंडर्ड में मेरा पहला फेलियर हुआ, मैं केमिस्ट्री एग्जाम में फेल हो गया। और जब वो हुआ, मेरे स्कूल में सब लोग बहुत अच्छे पढ़ते हैं, तो मेरा क्लास में जब मैं फेल हुआ तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस मेरा गया और इतना शर्म हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मेरी बहन बहुत अच्छी पढ़ती थी, हमेशा क्लास फर्स्ट थी, गोल्ड मेडल थी। तो सब लोग कंपेयर कर रहे थे कि ऐसे एक बहन को ऐसा एक भाई कैसा मिला। और स्कूल के टीचर्स भी हमेशा मेरे पेरेंट्स से बोल रहे थे कि इसका पता नहीं क्या होगा, ये कुछ कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, हमेशा गाने पे जा रहा है या बाकी फ्रेंड्स के साथ बात करते रहता है, मस्ती करता है। सो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग टाइम। और 11th और 12th मैंने बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस था, और 12th में खत्म किया 70%, 75, 76% लिया मैंने, जो मेरे स्कूल में बहुत ही कम है, क्योंकि आपको सब मालूम है कि साउथ इंडिया में लोग बहुत पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। तो 12th का मुझे मार्क्स बहुत कम था, फिर भी मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना था। मेरे पेरेंट्स का कुछ फोर्स नहीं था मुझे कि इंजीनियरिंग पढ़ना है, पर मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना था। तो मैंने उनको बहुत ही प्रेशर डाल के बोला कि मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाने दो प्लीज, मुझे कोई भी कॉलेज में मेरा एडमिशन ले लो। तो उन्होंने एक ही चांस था एडमिशन का, जो पैसे देके मैनेजमेंट कोटा में, क्योंकि मेरा मार्क्स बहुत कम था। तो मुझे अभी भी याद है, मैं मम्मी के साथ बैंक में गए और मम्मी का जो बैंगल्स है गोल्ड का, उसको हमने मॉर्गेज करके पैसा बैंक से लिया और कॉलेज में देके मेरा एडमिशन हुआ। तो वैसा था मेरा टाइम उस समय पे। और इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो वो और एक बड़ा मिस्टेक था मेरा, क्योंकि साइंस ग्रुप ऑलरेडी कुछ नहीं आ रहा था। फिर इंजीनियरिंग गया 2002 में, 1998 तब मेरा इंजीनियरिंग लाइफ शुरू हुआ। 4 साल जो इंजीनियरिंग पढ़ा मैंने, वो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम था। मैं 7-8 सब्जेक्ट में फेल हुआ वो 4 साल में, और मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था उस समय पढ़ाई का। और हर बार फेल हो रहा था तो मेरा मोटिवेशन भी डाउन हो रहा था, तो कोई मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहा था। मेरे मम्मी पापा भी बहुत ही सैड, उदास थे उस टाइम पे कि मेरे बेटा का ऐसा सिचुएशन है, क्या करेगा पता नहीं। तो कैसे भी करके मैं 2002 में पास हो गया इंजीनियरिंग। और क्योंकि मेरा बहुत सारा एग्जाम फेल हुआ था पहले में, तो उसके कारण से मुझे प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं मिला। तो जॉब कुछ नहीं मिल रहा था बाहर भी उस समय पे। शायद आपको याद नहीं होगा, पर 2001 में सितंबर 11 को अमेरिका में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ न्यूयॉर्क में। उसके हिसाब से पूरे दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया और मुझे कुछ भी जॉब नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम था। मैं 1.5 साल घर पे ही
मतलब कुछ प्रॉपर जॉब नहीं मिला, मैं कॉल सेंटर में जॉब शुरू किया और उस समय पे मैं डोर टू डोर फोन सिम कार्ड भेज रहा था टेलीफोन कंपनी में और सेल्समैन बन गया। फिर मैं कॉल सेंटर में गया। तो ये 1.5 साल ऐसे ही मेरा 2004 टू 2006 तक बहुत ही एकदम कठिन लाइफ था मेरा, क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा था और कुछ सेट नहीं हो रहा था, सेटल नहीं हो रहा था मैं। फिर 2006 में मैं फिर से मेरे पेरेंट्स को फोर्स करके मुझे इंडिया से बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजने को बोला। तो उस समय पे पापा ने एक छोटा सा घर खरीदा था, तो हमने घर को गिरवी रख के मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए पैसा उन्होंने लिया घर से और फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा। तो वहां से मेरा थोड़ा लाइफ चेंज हुआ, पर सिर्फ कॉलेज का फीस के लिए पैसा था। तो जो मुझे वहां पे ठहरने का, खाना पीना सब मुझे खुद काम करके करना पड़ा। तो मैं रोज सुबह 8 बजे से 5 बजे तक कॉलेज जाता था, फिर 5:30 बजे जॉब करने के लिए कार वॉशिंग, होटल में बर्तन धोना और मॉपिंग करना। फिर मैं इवेंट में जाके जो पार्टी करते हैं तो वो सब बियर पी के बॉटल फेंकते हैं, वो बियर बॉटल को कलेक्ट करके कचरे में डालना। वैसा जॉब 2 साल मैं किया जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए था खाना पीना और ठहरने की रेंट के लिए। तो वो 2 साल मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले ये सीखा कि जो भी काम है उसको हम नीचे और ऊपर नहीं सोचना चाहिए। जो भी काम है अच्छा काम है और उसको हमको एकदम मन लगा के करना है और उससे जो भी हम सीख लेंगे उसके लिए हमको हमेशा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए और हमको खुश रहना चाहिए। और वहां से मैं ये भी सीखा कि कैसे लोग से बात करना है, कैसे एक नेगोशिएट करना है, कैसे एक सेल्स लेके आना है। वो सब मैंने रोजगारी काम करके सीखा मैंने। फिर मेरा मास्टर का इंजीनियरिंग भी खत्म किया मैंने 2006 में। जब मैं मास्टर्स खत्म किया तब मैं बहुत कुछ सीखा था अकेले रह के, क्योंकि इंडिया में हमेशा पेरेंट्स के साथ रह रहा था। तो खाना पीना तो मम्मी कर रही थी, पैसा पापा दे रहा था, वहां पे सब कुछ मुझे करना था। तो मुझे खुद मेरा घर पे आके रात को 9 बजे 10 बजे घर आऊंगा, उसके बाद खाना पका के खाना खा के हम 6 लोग एक रूम पे रह रहे थे। बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। और फिर कॉलेज जाना था सुबह सुबह 4 बजे भी काम पे जाता था, कभी कभार 4 बजे से 7 बजे तक काम था, फिर वापस आके नहा के धो के फिर कॉलेज जाना था। पर वो सब अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब भगवान ने एक रीजन के लिए किया था, क्योंकि उससे मैं जो सीखा वो मैं कभी कॉलेज में नहीं सीखा। तो मैं सबको यही पहले बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो पर फिर भी आपको जो भी काम मिलेगा घर के पास में, ड्राइवर का काम या जो भी काम है, वो आप मन लगा के करो, क्योंकि सबसे आप कुछ तो सीखते हैं। आप लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं, वो आप सीखते हैं। फिर कैसे लाइफ में जीना है वो सीखते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो सीखते हैं। तो 2006 में मुझे शिंडलर में जॉब मिला, पहला जॉब था मेरे लाइफ का। और जब मैं कॉलेज खत्म किया तो मेरे क्लास में 30 लोग थे। वो 30 लोग में सिर्फ मैं एक बंदा था जिसको हॉनर्स का डिग्री नहीं मिला। बाकी सबको हॉनर्स डिग्री मिला पर मुझे नहीं मिला। तो मुझे उसमें भी बहुत दुख था कि सिर्फ मैं क्यों ऐसा हूं कि लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं। फिर पहला जॉब मिला भगवान की कृपा से 2006 में। वहां से मेरा लाइफ बहुत चेंज हुआ, क्योंकि वो जॉब तब तक मैंने बहुत कुछ सीख लिया था लाइफ में। तो मैं 2006 जब जॉब शुरू किया तो अच्छा सा जॉब करने लगा। मैं इंडिया से गया था ऑस्ट्रेलिया, तो आपको मालूम है मैं गोरा नहीं हूँ और मेरा इंग्लिश भी तब उतना अच्छा नहीं था। तो मैं रोज बाहर के लोग से बात करता था बिना कुछ शर्म। जो इंडियन के लोग थे सब इंडियंस के साथ ही बात कर रहे थे, पर मुझे पहले से ये दिमाग में गया कि इंडियंस के साथ कम बात किया और बाहर के लोगों से ज्यादा बात करना है, तो उनके बारे में मैं कुछ सीख सकता हूँ। उनका कल्चर कैसा है, उनका रहना सहना कैसा है, उनका लाइफ कैसा है, वो मैं सीखा। उससे मेरा रिलेशनशिप बढ़ा, एक से बढ़कर एक रिलेशनशिप बनाया मैंने। और 2 साल पहले एक जॉब में था शिंडलर में, उसके बाद कंपनी ने मुझे प्रमोशन दिया मैनेजर बनने के लिए। तो मैं एक ब्रांच मैनेजर बना और वो था जब मैं 28 इयर्स ओल्ड का था।
तो मैं शिंडलर ऑस्ट्रेलिया में यंगेस्ट मैनेजर बना उस टाइम पे, और जो भी लोग मेरे नीचे काम कर रहे थे और मुझे रिपोर्ट कर रहे थे वो सब 40 साल के ऊपर थे। तो उनको लगा कि ये क्या मजाक है कि ये एक छोटे से बच्चे को हमारे मैनेजर बना दिया, उसको एलिवेटर के बारे में कुछ पता नहीं है, लोग के बारे में कुछ पता नहीं है, मार्केट के बारे में पता नहीं है। तो सब लोग को लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, पर मैं फेल नहीं हुआ, मैं बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर बना। और 2009 में मुझे जब मैं मैनेजर बना, फिर 2012 में वियतनाम में मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन दिया कंपनी ने। जब मैं 30 साल का था, 30 इयर्स ओल्ड, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बना। तब मैं शिंडलर का यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बना पूरे दुनिया में। और वियतनाम में 3 साल था। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन था क्योंकि भाषा पता नहीं है, खाना पीना सब कुछ बहुत ही अलग है और लोग भी बहुत अलग है। पर वहां पे भी जाके मैंने लोग के साथ जो रिश्ता बनाया, उससे मैं एक अच्छा सा टीम डेवलप किया वहां पे। और मुझे सबको प्रूव करना था कि इंडिया के लोग किसी से भी कम नहीं है और हम सबसे आगे जा सकते हैं। तो मैं बहुत हार्डवर्क किया, बहुत नेटवर्किंग किया, बहुत सीखा, और एकदम 3 साल में हमने शिंडलर वियतनाम को नंबर 1 बनाया शिंडलर में पूरी दुनिया में। हमारे जो 70-80 ऑपरेशन शिंडलर का है पूरी दुनिया में, उसमें शिंडलर वियतनाम नंबर 1 बन गया और अवार्ड भी मिला हमको कि बेस्ट कंपनी इन शिंडलर। जब मैं ज्वाइन किया था तो वो एकदम बहुत ही बुरा हालत था शिंडलर वियतनाम का, और 3 साल में हमने उसको बहुत टर्न किया और सक्सेसफुल बिजनेस बनाया वहां पे। उसके बाद मुझे मलेशिया में प्रमोशन हुआ 2016 में। मलेशिया में भी मैं यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बना। वहां पे भी सिचुएशन बहुत खराब था और अलग भाषा था, मलेशिया में चाइनीज भाषा बात करते हैं, और बहुत ही एम्प्लॉयज के बीच में कुछ टीम वर्क नहीं था, उनका बहुत टेंशन था अपने अपने ऊपर। वो सब मैंने मैनेज किया, और मलेशिया में भी जो सक्सेस हमने किया वो हम पहले कोई नहीं किया था। जब मैं गया था तो मलेशिया में सेल्स 500-600 एलिवेटर भेज रहे थे, और एक ही साल में हमने उसको दुगना किया। जो भी कस्टमर शिंडलर के साथ काम नहीं कर रहे थे, मैं उन सब से जाके मिला, उनको समझाया कि हम क्या कर रहे हैं अभी मलेशिया में, कैसे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। मैं खुद जाके मिला बहुत सारे एम्प्लॉइज को, और मैंने ये भी सीखा कि एक कंपनी में अगर आप सीईओ हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उसका ये मकसद नहीं है कि आप एक भगवान है, और जो भी नीचे परफॉर्म करते हैं जैसे टेक्नीशियन है या कोई बंदा सर्विसिंग करता है, तो उसका मतलब नहीं है कि वो छोटे हैं कंपनी में। मेरा मानना है कि लाइफ में सबका अपना अपना रोल होता है। ये ऊंच नीच का सिर्फ इंडिया में हम बात करते हैं, तो आप कोई भी जाति से हो, कोई भी स्टेट से हो, या साउथ से है, नॉर्थ से है, आप ऊंचा है, नीचा है, आप गोरे हैं, काले हैं, कुछ फर्क नहीं है। एक ही फर्क है, अपना काम, परफॉर्मेंस एंड अपना पोटेंशियल। उसके ऊपर मैंने बहुत लोगों को चांस दिया ऊपर आने के लिए। अभी शिंडलर वियतनाम, शिंडलर मलेशिया, शिंडलर ऑस्ट्रेलिया में जो जिनको भी मैंने ट्रेन किया, वो पूरी दुनिया में बहुत बहुत बड़े पोजीशन में है, शिंडलर में या बाहर में भी। और मुझे ये समझ में आया लाइफ में कि लोग कोई भी देश से हैं, उनका सोच हमेशा एक ही होता है कि अच्छा काम करना है, तरक्की करना है लाइफ में। तो उसके हिसाब से हमको लोग को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, और उनको बढ़ा के इम्प्रूव करना है। तो वो सब सक्सेस के बाद 2018 में मुझे शिंडलर इंडिया का यंगेस्ट सीईओ बना के लेके आया शिंडलर ने, और यहाँ पे भी मैं 15 साल के बाद वापस आया इंडिया, और मैं इतना गर्व था कि फेलियर जैसे यहाँ से निकला और एक सीईओ के रूप में वापस आया, सबको सिखाने, मुझे भी सीखने, और शिंडलर इंडिया को एकदम अलग लेवल पे हम अभी परफॉर्मेंस लेके जा रहे हैं। जितना भी अभी स्ट्रेस है मार्केट में, पर शिंडलर इंडिया 2019 में नंबर 1 कंपनी बना एलिवेटर इंडस्ट्री में,
इसका क्रेडिट पूरा मेरी टीम को जाता है। पर मैं ये स्टोरी आपको ये रीजन के लिए सुना रहा हूं कि एक मामूली सा आदमी जो पढ़ाई अच्छा से नहीं कर रहा था, मैं इतने से ऊपर लाइफ में आ रहा हूं। तो इसका ये रीजन है कि मुझे हमेशा लाइफ में जीतना था, और मेरे ऊपर जो कॉन्फिडेंस मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे एम्प्लॉइज, मेरे बॉस सब रखे हैं, उसको हमेशा मुझे प्राउड करना था। उनको ये मन में आना चाहिए कि जितना भी अपॉर्चुनिटीज हमने दिया अशोक को, वो उसने अच्छे तरह से यूज किया है। और हमेशा जो भी काम मैं करता हूँ वो ऑनेस्टली करता हूँ, सच्चाई से करता हूँ, झूठ बोल के नहीं, कोई जुगाड़ करके नहीं। जो रूल्स है वो हमेशा पालन करना है। करेक्ट पाथ में जाके शिंडलर को तरक्की करके लेके आना है, और किसी का लाइफ बर्बाद करके हम ऊपर नहीं आना चाहिए। सबको एक ही जैसे ट्रीट करना चाहिए। ये सब करने के वजह से मुझे लगा कि मुझे इतना तरक्की हुआ, और अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि मैं कोई अजीब सा आदमी नहीं हूं, मेरा उतना भी इंटेलिजेंस नहीं है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, एक मामूली सा आदमी हूं। पर मेरा एफर्ट जो था वो हमेशा अजीब था, अलग था, बढ़िया था। I wanted to always be the winner in whatever I did in my career. I wanted to prove everybody that they will be proud of me and I will make them proud. I wanted to work with honesty, good quality, safety, people development, and integrity. ये आत्मनिर्भर जो मोदी साहब बोल रहे हैं अभी, वो मैं हमेशा पालन करता था लाइफ में, कि मुझे खुद आत्मनिर्भर होनी चाहिए। तो मेरे से अगर 1000 लोग बढ़ सकते हैं तो उसमें मेरा खुशी है। दूसरों के बारे में मैं सोचता था हमेशा कि उनका लाइफ मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो ये सब वजह से मेरा करियर का प्रोग्रेशन हुआ, और जितना भी मैं ऊंचे जाता हूं उतना मुझे हमेशा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे हमेशा हम्बल रखो, हमेशा ग्राउंडेड रखो। मुझे कभी भी ये दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए कि मैं अभी सीईओ बन गया तो मैं भगवान हूं, क्योंकि एक बार वो मन में आ गया तो जो भी सिचुएशन लाइफ में आपको, स्टूडेंट्स कभी मत लूज करो, अपने ऊपर विश्वास हमेशा रखना चाहिए। और आपके माता पिता है, फैमिली है, फ्रेंड्स है जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपके ऊपर बहुत ही विश्वास रखते हैं कि आप कुछ बनेंगे लाइफ में। उनका विश्वास कभी मत तोड़ो, उनके लिए काम करो। सबके पास एक ही टाइम है, 24 आवर्स। नॉर्मल जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद आपको घर में आके इंटरनेट पे मूवी भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, या पढ़ाई भी देख सकते हैं। बहुत सारे हैं सीखने के लिए लाइफ में। तो बाकी लोगों जो मैनेजर है बाकी कंपनीज में, उनके साथ कनेक्ट करो, नेटवर्क करो, बात करो, उनसे सीखो। कोई भी आपको मिलेगा जो पढ़ा लिखा है, जो सक्सेसफुल है, उनके साथ आप कनेक्ट करो। जैसा लिंक्डइन बोल के एक प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स के लिए जो पढ़ाई करते हैं या कॉलेज काम करते हैं, वो लिंक्डइन में जाके आपका अपना रजिस्ट्रेशन करके आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जिनसे आप सीख सकते हो।
न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, मैं हर साल 5-6 बुक्स पढ़ता हूँ और नॉलेज लेने के लिए। तो लाइफ में कुछ अलग बनना है तो कुछ अलग करना है। और जो लोग फेल होते हैं वो अपने आप पहले दिखना चाहिए। बाकी लोगों को ब्लेम करके कुछ फायदा नहीं है, उनके ऊपर इल्जाम करके कुछ फायदा नहीं है। अपने ऊपर इल्जाम लेना है कि हमने क्या ऐसा नहीं किया कि हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है। खुद को मोटिवेट करो और बाकी को भी मोटिवेट करो लाइफ में सीढ़ी चढ़ने के लिए। ये सब करोगे तो पक्का सक्सेस आपके ऊपर आएगा और you can make everybody proud and happy. So ये मेरा formal session का खत्म है, presentation मैं जो कर रहा हूँ. This is the end of my formal presentation. This is what I wanted to share with all of you. अभी आपको कोई question पूछना है मुझसे, कुछ सीखना है, आप अभी पूछ सकते हो. Thank you everyone for listening to me. धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Sir, thank you so much, sir. Self-belief and hard work will always earn your success. So definitely, success doesn't come to you. You have to go to your success. And thank you so much, sir, for your beautiful speech. Students, you can ask any question to our sir. Please raise your hands whenever you have to ask any question. Please raise your hand. And you should. Can you? अरुण सर आप म्यूट पे हो. Harit and someone, can you guide everyone how do you raise the hands? You have to tell them where is the button for raising the hand. Harit? Yes, Arun. Yes, definitely, sir. Please go to the more, and there you can click on raise your hand. Go to the more and then click on raise your hand. And after the getting your answer, please click same more and down your hand. So, Rupali, we have a couple of raised hands, so maybe we can start. Krina, Yes. आप अपने आप को unmute करके question पूछ सकते हैं. Krina Gada. Yes, Rina. Hello. Yeah. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. My question was, sir, जब आप demotivate होते थे, so like what work you do to motivate yourself, और आप ऐसा क्या करते थे जो आप motivate हो जाते थे? तो ऐसे बहुत सिचुएशंस आया है मुझे लाइफ में जब मुझे लगा कि कुछ भी नहीं होगा. अभी मुझे याद है मेरे फिजिक्स टीचर मेरी मम्मी को बोली कि ये लाइफ में कोई इम्प्रूव नहीं करेगा, आप इसको कोई ITI में डाल के शायद कुछ घर का काम के यूज कर दो. तो मुझे जब भी लोग ऐसे मुझे वर्ड्स यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको मुझे गलत साबित करना है. मेरा मोटिवेशन हमेशा ये था कि मेरे पेरेंट्स एक्चुअली मुझे अभी तक जब भी मैं इतना फेल हुआ मेरे पेरेंट्स मुझे एक बार भी मुझे डांटा नहीं. वो मुझे और बहुत लगता था. अगर वो मुझे डांटे होते तो मुझे गुस्सा होता, पर मुझे कभी नहीं डांटा तो मुझे लगा कि ये इतने अच्छे हैं तो मैं इतना बुरा क्यों हूं. तो वो मुझे मोटिवेशन था कि उनको मुझे हमेशा प्राउड कराना है लाइफ में. My teachers, there were a lot of teachers who were actually feeling bad for me कि why he is not studying well. So my motivation was always to prove the people कि मैं एक दिन साबित करके दिखाऊंगा सबको कि मैं भी कोई हूँ लाइफ में. मेरे जो फ्रेंड्स थे जो मुझे मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मुझे बहुत बुली करते थे जब मैं स्कूल में था, तो उनको भी मुझे दिखाना था. तो मेरा हमेशा आइडिया ऐसा था कि I have to make my parents proud. I have to make my teachers proud. I will win. So I used to self-motivate myself and always used to tell myself that I have to work more harder and win the game. Very good. Thank you so much, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Next, Preet, wait. You can unmute yourself and you can ask question. Preet, Can I ask? Yes, ma'am. Thank you so much, sir, for sharing your beautiful journey and inspiring journey with us.
Am I audible? Yes. Yes, yes. Is it Preet? Yes. So sir, my question था कि आप visible नहीं हो. Okay, fine. I can hear you. Okay, okay, fine. So actually मेरा question ये था कि अगर मुझे business करना है, okay, and मेरे पास उतना capital नहीं है invest करने के लिए, तो उसको किस तरह हम manage कर सकते हैं? See, I mean, first of all, it depends on the business idea. Aajkal, there are a lot of platforms where you can share your ideas and people can invest in your business if the idea is a good idea. But before you start looking at the business, you can also try to work in a similar business somewhere to learn how they do it. You have to do a lot of networking as well. Okay. So you'll have to know people, and through the network and contact, for example, now YouTube and TikTok, for example, was a big business. Yes. So people used to make YouTube videos. वहाँ से उनको बहुत सारा fame मिलता है. In fact, if you are interested in my story, there is a very famous YouTuber, Ranveer Allahabadia. He has a YouTube channel called Beer Biceps. Yes. Now he actually runs a podcast. YouTube में वो एक वीडियो बनाता है celebrities के साथ हमेशा. Okay. Movie stars के साथ, sports star के साथ. So he has done interview with almost all the top movie stars. उसका 4-5 million followers है. उसने उसके वीडियो में पहले बार एक नॉन सेलिब्रिटी को बुलाया, वो था मैं. और उसमें 1 घंटे का बात किया मैंने मेरे जर्नी के, और डिटेल में बात किया मैंने. तो आप वो सुन सकते हो. It's in English and Hindi as well, I think. Sure. So he's also an inspiration. He's only 23 years old, and 19 years में उसने YouTube channel शुरू किया, and वहाँ से he tried to become bigger. Now he's doing a lot of business. So Preet, my advice to you would be network with people, share your ideas like for example, create an account in LinkedIn, and you can share your ideas, and somebody will try to get attracted with ideas. Try to work somewhere, learn the tricks of the trade. Okay. And my second and last question is like how to find an investor. So there is a lot of angel investors बोलते हैं, angel. If you go to Google and search for angel investing, okay, there's a lot of companies where there are people who are investing money in other companies. They are looking for ideas, but they have money. So through that, and then through the LinkedIn network, through the connections you make, you can find investors. It is not easy. So, the success rate of new business startup दुनिया में सिर्फ 10% है. Okay. Right. Thank you so much. Yes. So the next question, Ujala, you can ask your question. You can unmute yourself and ask your question. Hello, good afternoon, everyone. Hi, sir. So my question to you is, what mistake you have made along the way to your journey? I made a lot of mistakes. In fact, I would say more mistakes than good things. One of the mistakes I used to have in the past, before when I was in India, I used to be very not treat everybody with the same respect. India में आपको मालूम है, there's a lot of community, ऊंच नीच, all those kind of things we used to follow. So I used to also not understand that very well, and I used to treat my driver and all that not in the right way. But I learned later in life, thankfully very early in life, I learned to respect people wherever they are from. This is one of the mistakes I can share. Okay, sir. Thank you. So I have one more question. That what was the hardest decision you have ever made? Hardest decisions I have ever made was always when I had to tell people in the company to leave the company. Because many times performance is not up to the level, but there is a lot of reason also why they were not able to perform. We give them chance, we give them training, but even then they don't perform. So it's a very difficult decision to go and tell them कि कल से आप company में नहीं हो.
That is probably the hardest decision, that I can never sleep. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, Lakshmi Mishra, please ask your question. Yeah, sure, ma'am. Good afternoon, sir and ma'am. My question is for sir. That is affect when you are becoming a failure, is affected to your health or your career? I don't think it affected my health. Now, physical health, mental health affect हुआ. I was very down, depressed. हमेशा वैसा होता है, but physical health never got affected. And whenever I got affected mentally, then I used to go to my parents, my sister, my friends, and share with them my feeling. But my dad was always confident about me. He used to always tell me कि मुझे मालूम है कि तू कुछ करेगा life में. I don't know why he had that confidence, but he always had that confidence. So I always used to go to my support system to help me. Okay, sir. One question is more. Would you have any changes in your company? Sorry? Will you have changes in your company? Will I have changes in my company? Would you have any changes in your company? Am I hearing it right? Would you have any changes in my company? Is that correct? Yeah. Lakshmi, you can write down your question in chat box also. We can read your question. Yeah, sure, ma'am. Yes. Yes, Lakshmi. Meanwhile, there's also a question from Divya in the chat box. Yeah, I saw that. Yes, that's a very good I question. can answer that question. My question is, what do you think about the youth of the country? How can young minds make our country economic driven country? She wants to ask you, like, sir, how we can maintain a balance between saving and investment. No, Divya's question is different. Okay. Yes, multiple What are the questions. opportunities that should be given, sir? How can we maintain balance between savings and investment? So Yes. first, your question is, what do you think of the youth of the country? Youth of the country, I'm very positive. I think they have a lot of energy, lot of new ideas, and the willingness to do something. उनको कुछ बनना है. सभी यूथ को कुछ बनना है लाइफ में. अभी मैं तो वो साफ तरह से देखता हूँ. But the problem I see is they are very जल्दी में है. उनको सब कुछ अभी फास्ट फूड जैसा इंस्टेंट चाहिए. और सक्सेस इंस्टेंट नहीं होता लाइफ में. तो थोड़ा पेशेंस रहना बहुत ही अच्छा है. How can we maintain a balance between saving and investment? Yes. I would say for the current situation of India, savings is more important. अगर आपके पास पैसा है तो बचा के रखो. अभी के सिचुएशन में ये बहुत ही important है. और to make the country more economic driven, I would say not be very selfish. बहुत सारे जो लोग मैं देखता हूँ हमेशा बहुत ही सेल्फिश है. सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं आता है. अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सबके लिए करोगे तो आपका भी कुछ खुद इम्प्रूवमेंट होगा लाइफ में. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. The next question, yes, you can ask. Please unmute yourself and ask the question. May I, ma'am? I'm audible to you? Yes. ये सर जैसे आपने बताया करके आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना नहीं हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया में, यूरोप में, आपने उनसे कम्युनिकेट कैसे किया? ऑस्ट्रेलिया में तो इंग्लिश है. आप उसके बारे में बात कर रहे हो या वियतनाम? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया में, यूरोप में आपने जैसे बताया करके आपका पहले इंग्लिश स्ट्रांग नहीं था, आपने उनसे स्टार्टिंग में कम्युनिकेट कैसे करना? तो इंग्लिश ऐसा कोई भी भाषा ऐसा है कि आप जब तक बात करोगे तब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा. पर जब हम इंग्लिश अच्छे से नहीं बात कर रहे हैं तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं होगा बात करने के लिए. मैंने क्या किया, मुझे कुछ शर्म ही नहीं था. जब भी मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था तब भी मैं बात कर रहा था और जितना मैं ज्यादा बात किया उतना इम्प्रूव हुआ. और एक और बात है कि मैं रोज पेपर पढ़ रहा था. इंग्लिश पेपर पढ़ के मैं बहुत प्रैक्टिस करता था. बहुत सारे इंग्लिश बुक्स पढ़ के बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहा था और वो सब मुझे बहुत ही हेल्प हुआ और रोज बात करने से मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हुआ.
वियतनाम में तो मैं वियतनामीज भाषा सीखा नहीं, पर मेरा जो मैं एक ट्रांसलेटर के द्वारा करता था, तो मेरा सेक्रेटरी वो इंग्लिश और वियतनामीज बात करती थी, तो उसके साथ मैं सब जगह पे जाके मैं सबसे बात कर रहा था। पर मैं हमेशा मेरा एक एडवांटेज था कि सब लेवल के लोग के साथ मैं बात करता हूँ। मुझे कुछ शर्म ही नहीं है, क्योंकि तभी मुझे उनके साथ कनेक्शन होता है, नेटवर्किंग होता है। Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you, Yash. Okay, sir. So next, Ankita, please unmute yourself and ask your question. Ankita. गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लास्ट सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी थी जो आपने सेलिब्रेट की थी? मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है माय 2 किड्स। Okay. क्योंकि फैमिली का जो अचीवमेंट है वही हमेशा हमारे साथ रहता है। जब मेरा 2 बच्चे का जन्म हुआ, दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट जो हमने सेलिब्रेट किया। और मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस की है, तो हमेशा जब भी वो मेरे लिए खुद का जॉब छोड़ के मेरे साथ आई, वो एक सेलिब्रेशन है मुझे। अगर बिजनेस के बारे में बोलना है तो इंडिया का जॉब जब मिला तब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ओके। और सर और एक क्वेश्चन था कि आपको मतलब सिंगिंग के अलावा आपको कुछ और इंटरेस्ट किस चीज में? सिंगिंग के अलावा मेरा इंटरेस्ट है बुक्स पढ़ने में और म्यूजिक सुनने में और लोगों के साथ नेटवर्किंग करने में। तो मैं बहुत लोगों के साथ नेटवर्क करके उनसे सीखता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। There are a lot of questions in the chat box. Yes. I can answer some of them. Yes. Today's youth are getting stressed out because of growing competition. What are the best coping mechanism we can go for? So thank you for the very good question, Divya. ये एक बहुत बड़ा problem है. The reason for this stress, क्योंकि हम बाकी लोगों के साथ हमेशा compare करते हैं। जब आप किसी और के साथ कंपेयर करके अपना लाइफ जियोगे तो हमेशा आपका लाइफ बहुत ही खराब होगा। आपको हमेशा खुद के साथ कंपटीशन करना है। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि लोग हमेशा उनको बहुत अपसेट हो जाते हैं कि उसका सैलरी ज्यादा क्यों है, उसको क्यों प्रमोशन मिला, उसकी बेटी का अच्छा सा शादी हो गया, उसका बेटा फॉरेन जा रहा है। हमेशा दूसरों के देख के हमको जेलसी होता है और स्ट्रेस होता है। पर खुद अगर हम पिछले साल से इस साल इम्प्रूव हो गए तो वो अच्छी बात है, तब आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो आपको हमेशा खुद के कंपटीशन करना है, दूसरों के साथ करना नहीं है। और खुद को इम्प्रूव करने के लिए जो एक्शंस करना चाहिए वो करो, उस पर ध्यान दो, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाएगा। Okay. So actually every student wants to ask, but our time is actually up to 12:45. So please students drop your questions in chat box. Definitely we will send these questions to Ashok sir and they will give us answer. But up to that 1 to 2 questions we can take. So I request Muskan. No, I think so. Rutuja is there. Rutuja, please ask your question. And after that, only 2 questions we can take. So please write down your questions in chat box. Yes, Rutuja. Hello, sir. My question is that how you face the society when you get failed in the journey? I never worried about society, thankfully. And I'll tell you the reason why I was able to do that, because मेरे parents कभी उसके बारे में सोचे नहीं थे। मेरे parents मुझे कभी आके नहीं बोले कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। ये प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा दूसरे के बारे में कदर करते हैं और हमारा उसका प्रेशर हमारे ऊपर डाल देते हैं। So you should not I never worried about what others were thinking. I was worried about what my parents were thinking. उसका मुझे हमेशा फिक्र था, और जब as long as they were okay, I was okay. और मैं ये बात सबको बोलना चाहता हूँ कि आप दूसरों के बारे में फिक्र करके लाइफ जियोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है। Yes, there will be people always challenging you, making fun of you, सब बोलेंगे, पर आपको सीखना चाहिए कि फोकस अपने आप, अपने सक्सेस में, अपने एक्शंस में, अपने फोकस में दे दो, तब आपको ये टेंशन नहीं होगा। Yes, sir, definitely. Thank you, sir. Sir, there is one
a very good question in chat box. I will like to read that. Sir, what is the different? No, CEO. What is the strategy you defined when you become a CEO? Okay. So whenever I took a job in Schindler, the first thing is to always make sure that you have a very good team. When you have a very good team, then you prepare a long-term strategy. Like for Schindler India, we have a 5-year strategy. And whenever I start a new job, first 100 days का plan बनाता हूँ मैं कि पहले 100 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ. And by end of the 100 days, along with my team, I will make the 5-year plan for the company. And I stick to that. During the first 100 days, जितने लोग के साथ मैं बात कर सकता हूँ उतने लोग के साथ मैं जाके बात करता हूँ. जो कोई भी लेवल पे हो शिंडलर में, वो टेक्नीशियन भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, क्योंकि वहां से हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है कंपनी में. नहीं तो हम एक ऑफिस में कोने में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है. तो बाहर जाके, साइट पे जाके काम करना है, फील्ड में जाके काम करना है, लोगों से बात करना है. मैं मेरे एम्प्लॉइज के साथ हर हफ्ते में मंडे मॉर्निंग को सबको ईमेल भेजता हूँ, पूरे कंपनी को, और वो मुझे वापस ईमेल रिप्लाई भी करते हैं. फिर मैं व्हाट्सएप में, फेसबुक मैसेंजर में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में सबके साथ बात करता हूँ. तो वो मुझे सब इंफॉर्मेशन बताते हैं, उसके हिसाब से मैं एक स्ट्रैटेजी बना के मैं चलाता हूँ. That is how I plan. I see some questions about who is my role model. My role model is not one person. There is a lot of people I get inspired by, including very, very common people. Even people like you, I get very inspired by, जो बहुत मुश्किल की लाइफ पे जीते हैं, वो भी मेरे इंस्पिरेशन है. So I get inspired by many people every day. Thank you, sir. There are so many questions in the chat box, and all questions are such good questions. You can choose whichever you want to answer. There are so many questions. Okay. What are the success habits? And also, what is the best advice you can give? I will combine these two questions. The first thing is, you have to be very good in communication. आपको दूसरों के साथ बात करने का नॉलेज सीखना चाहिए. शर्म नहीं होना चाहिए. आप अगर पब्लिक में भी हो, अगर आप ट्रेन में हो या कोई बस में हो, तो अच्छे से लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज, हमेशा फीडबैक लेना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या इम्प्रूव कर सकते हो. हमेशा फीडबैक लेना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए. Continuous improvement, communication skills, networking skills, and the willingness to always learn from anybody. These are very, very critical advice that I follow myself and I want to share with all of you. And learning English is very important. So you have to do that if you want to grow a lot higher in your life. Let me see other questions. What is your viewpoint on today's employment? Yeah, it is a very difficult time now in India. You know, there's not many jobs, more candidates. That is why you have to stand out. आपको अलग दिखना चाहिए. So you'll have to be more out there. I don't know whether all of you know about LinkedIn. I request that you create a profile in LinkedIn. This is like Facebook for professionals. You can create a profile and wahan se you can network with people, and that will really help you. So there's a very interesting question which says, if a product or service launched recently fails expectations, what will be your next step? You should just change it immediately and fix it.
You should not run away. You should accept the mistake. If it is not good, you should accept the mistake. It is not good, and then introduce a new, better product. What are the skills you should have to reach this position? I think I have shared quite a lot of skills. Being humble, being people focused, continuous improvement, taking feedback. These are some of the key skills. What do you expect from your employees? Exactly what I said. I want employees to be open for feedback, humble, always willing to do things better than others. Doing more than your job profile. अलग करना है. अगर आप एक काम पे हो और आपका बॉस बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो जो भी आप कर रहे हो तो उसको आप और अच्छा कैसे बना सकते हो? That is what I always suggest. Thank you, Ashok sir, for answering all questions. Yeah. And I am given to a hard stop in the next 5 minutes. So I would turn to. By the way, because I couldn't answer all the questions, you can connect with me on my social media, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. I'm in all those social media platforms. Ashok Ramachandran or Ash Ramachandran. You can connect with me. You can ask your questions. You can follow me there and you will learn from my posts and all that. I hope that I was able to inspire all of you today. Please believe in yourself. Life में हमारा success और failure हमारे ऊपर है, दूसरों के ऊपर नहीं है. Opportunities सबको मिलता है और हमको opportunities छीनना चाहिए life से. आप opportunity के लिए wait करते रहेगो तो you will be left behind. Believe in yourself. Keep chasing obscene success. Do good to people and be safe. Thank you. Ashok, so I think thank you so much on behalf of all of us in Magic Bus for your truly inspiring story. I think these are the stories, as I mentioned earlier. My name is Arun, and I used to work in Accor as a CEO before I shifted to Magic Bus to give this whole thing back to the society. I've seen the corporate world. I'm now seeing the social sector world. I think these young people, by the way they ask the questions, have the same inspiration, the same aspiration, like you. So I guess I wanted to just, apart from thanking you, just wanted to make 2 requests to you. Do allow us to share this recording on this Zoom link, which is truly inspiring, I must tell you. With all our other students, so many students graduate from us. Many of them are very successful in their own rights. They've all doubled their family income and they become mentored to their own communities and change bearers. So that's my first humble request. The second is, we have, like these young people who have listened to you live and asked you so many questions. We have similar set of people in South, especially very large in Chennai, Bangalore, Hyderabad, and in Delhi. Today, the technology allows us to get more than 500 people on this channel at one time. And I guess, these kind of people at your level taking time off is much more, is more than what all of us put together to, make these people, think you can mainstream. So my humble request is, if you can find time off, to address larger section of people in 500 in our South and North, especially Tamil Nadu, North. I think it will do so much good to them and My so pleasure. much good for the country. And I know that you have a busy schedule, so please give us this whole opportunity. No problem. And I hope that we will have opportunity to talk to you and tell you what all good things Magic Bus is doing through your team. Your team is wonderful, the CSR team. And we will get a chance to get some 20 minutes audience with you to talk to you about Magic Bus. But truly, I'm really humbled the way you've come up in life. And I'm 63 years old, but I guess, and I was also a CEO. I didn't come from society, but I guess if 10 of us can do this, I think India would be a much more inclusive country, and it can be a superpower. So I'm with you, Arun sir. I'm absolutely with you. Arpita, please, let us work with them and see how much more I can do these sessions.
I wanted to say that I know I have in the last 3 months, I have done about 12 sessions with all the top colleges, IIMs and all that. But itna questions mujhe kisi ne nahi pucha. Itna enthusiasm, not even the IIT Delhi or IIM Ahmedabad students asked me. Today, I feel really blessed. And thanks, Arpita, for this opportunity to get me to this platform. I would love to do more of these sessions rather than talking to the students of top colleges. This is more fulfilling. Today, I feel proud of myself. Thank you, Ashok, and God bless you. Stay safe, and continue to do this wonderful work which you are doing for Schindler, and bring more happiness to lots of only not your colleagues, your employees, but I think a larger section of people who want to be aspiring and successful as you. God bless you, and I think each one of you are really, really proud, and we will restore this particular speech of yours, inspiring story, and make it a part of our curriculum. Thank you, and through Arpita, I reach out to you separately to see how we can more closely work together. God bless you, and the entire Schindler team and the Magic Bus youths. Thank you for asking those wonderful questions. You will be successful if you take on all those feedbacks which Ashok has said in his journey, and you will truly be able to then say, I have done it, and remember this day when you actually do that. But do not, when you're successful, make sure you also continue to support other young people from your own community to be as successful as you. God bless all of you and stay safe. Thank you so much, Ashok, once again. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Not to Ashok. forget. Yeah. Thank you, Arpita, for the Thank you so much, coordination. sir. Thank you. Yeah. Thank you, everybody. Yeah. Thank you. Thank you. It was truly inspiring. Thank you so much.